चलो आ जाओ बायबैक में क्वेश्चन नंबर 4th. लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 4th. Alpha Company Limited has a paid up equity share capital of 20 lakhs in 2 lakh shares of rupees 10 each. It resolved to buy back 50,000 equity shares at rupees 15 per share. Okay? And how many shares they have resolved to buy back, beta? They have resolved to buy back 50,000 equity shares at the rate of rupees 15 per share. For this purpose, it issued 20,000 12% preference shares of rupees 10 each at par payable along with application. The company has to its credit rupees 2,50,000 in securities premium account and rupees 10 lakh in general reserve account. The company utilized the whole of the securities premium account and for the balance general reserve pass necessary journal entries. Is that okay? So boys and girls, let's draw a regular working note for that. बेटा मुझे एक बार चीज देखकर बताओ कि क्वेश्चन नंबर 4th में कितना बायबैक करना चाह रहे हो आप. सो मैं इधर लिखूंगा फेस वैल्यू. कैन आई राइट डाउन 50,000 into rupees? What is the face value, beta? 50,000 into rupees 10. Do you all agree? Now my dear friend, what is the redemption value? Can I not say 50,000 into rupees 15? This is further divided into two parts. I'll write down premium on buyback. Premium on buyback. And how much rupees I am going to write down? Rupees 5. So rupees 50 share 50,000 into rupees 5 sahi hai? And what is the face value? Can I not write down 50,000 into 10? It is equal to 5 lakh. और ये कितना है? Is equal to 2,50,000. अब मैंने आपके इसके दो हिस्से बताए थे. फर्स्ट वे कौन सा है? What is the first way? Very good. Free reserves. And the second one is fresh issue. Let's first tackle premium on buyback. You need 2,50,000. चेक करो सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या आपके पास? गो एंड चेक सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या? कितना है बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास? 2,50,000. सो कैन आई नॉट से एसपी मिल गया रे भाई 2,50,000. कुछ भी जीआर यूज करने की जरूरत नहीं है. इसका बैलेंस कितना हो गया? 0. नाउ माय डियर फ्रेंड, फ्री रिजर्व और फ्रेश इशू की बात है. बेटा जहां तक क्वेश्चन समझ पा रहे हो उन्होंने क्लियरली दिया है दैट दे हैव इशूड द शेयर्स. They have issued the shares, preference shares. So how many shares they have issued? 20,000 preference shares of rupees 10 each. So can I not say 2 lakh? Yes or no? Can I not say 2 lakh? Do you all get my point? And what do you do about the free reserve? Free reserve कितना आएगा? 3 lakh. And this 3 lakh will go where? In CRR. Capital Redemption Reserve. I hope you got my point. Please understand, यहां पर रूल बनाकर रखो कि यहां पर हमेशा सिर्फ फेस वैल्यू ही जाएगी. Here you are only eligible to take face value. What? To redeem the face value, you have to replace it by face value. भले share was issued at premium, you can only take face value still. To फंड फेस वैल्यू यू शुड फंड इट विद द फेस वैल्यू ओनली. मतलब एक जाएगा दूसरा आएगा तो आपको उसको रिप्लेस किससे करना है? फेस वैल्यू को फेस वैल्यू से. सो इवन इफ द शेयर्स वाज इशूड एट प्रीमियम ईयर, पॉसिबली यहां पर 12 रुपए मिल रहा था. टेक एन एग्जांपल, 12 रुपीज मिल रहा था. आई कुड नॉट हैव रिटर्न 20,000 इनटू 12 रुपीज, दैट इज आईपी. मैं 12 रुपए नहीं ले सकता. भले ही 12 रुपए पर इशू होगा, मैं क्या ले सकता हूं? फेस वैल्यू. Is that okay? Just remember this in your mind. ये complete कर लो note and then we'll go ahead.
इज इट ओके? क्या हुआ? बहका बहका लग रहा है इसलिए पूछ रहा हूं. Have you done till this point? Let's go on. Oh. Question number 4 बेटा सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 4 में कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ लेट्स मेक द फर्स्ट एंट्री. पहला क्या, आपने शेयर इशू किए. कितने शेयर इशू किए? 20,000. सो प्लीज चेक बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स इनटू प्रेफरेंस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. एग्रीड? ये डायरेक्टली हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. चलेगा? टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए. being preference shares issued on 20,000 on being preference shares issued, being 20,000 preference shares issued, ऐसा लिख दो. being 20,000 preference shares issued at the rate of rupees 10 each है, 100 each है, 10 each. being 20,000 preference shares issued at rupees 10 each at par. ठीक है बेटा. नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी? आपको पैसा मिल गया, नेक्स्ट एंट्री आपने नहीं करना. नेक्स्ट एंट्री कौन सी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट. अभी मैंने आपको कराया था ये एंट्री नहीं करनी है, अभी आपने कर चुके हो. आप कौन सी एंट्री करोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट. वर्किंग नोट हम ऑलरेडी बना चुके हैं. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 3 लाख. क्लियर? Have you done till this point? General reserve account debit to capital redemption reserve account. नेक्स्ट एंट्री देखिए. Securities premium account debit. Do you remember that? To premium on buyback 2,50,000. हमारा राइट साइड का एरिया. Securities premium account debit to premium payable on buyback. You have done till this point. Now the next entry. हमको किसकी एंट्री बनानी है? अभी ड्यू बनाना है, पैसा ड्यू बनाना है ना. सो हमारी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. ध्यान से देखना.
5 lakh face value. Premium payable on buyback account debit. Premium payable on buyback account debit, how much? 2,50,000 to equity shareholder account. और लास्ट की एंट्री होगी आपकी equity shareholder account debit to cash oblique bank account. 7,50,000, 7,50,000. Is that okay? Yes. So please wind it up. Question number 4. चलो बताओ मुझे अगला कौन सा है? अगला क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया ना? यस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर. अब थोड़ा सा लेवल हम डिफिकल्ट करते जाएंगे बेटा क्वेश्चन का. ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है. ऑन 31st March 2001 द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ न्यू एरा लिमिटेड. इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. कल हमने देखा था कि अगर पार्टली पेड अप हो तो हमको क्या करना पड़ता है? फुल्ली पेड अप करना पड़ता है. नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 12% डिवेंचर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री प्रोविजंस. बेटा फिर क्या है? मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एट बैंक. ऑन 1st April 2001 the company announced the buyback of 25% of its equity shares at rupees 15 rupees per share. बेटा जरा फेस वैल्यू देखो शेयर की कितनी है? 10 रुपीज है क्या? आप कितने रुपए में बाय कर रहे हो? 15. So you are paying how much? 5 rupees extra. So that is nothing but premium payable on buyback. Are you getting my point? Boys and girls, जैसे ही आपको क्लिक हो कि प्रीमियम ऑन बायबैक है तो जरा जाके देखो उसका फंडिंग कहां से होगा. या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम या जनरल रिजर्व. क्या आपकी बुक्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम है? क्या है? ओके, लेट्स मूव फर्दर. फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड all of its investment for rupees 150 lakh and issued 2 lakh 14% preference shares of rupees 100 each at par, the entire amount being payable with the application. The entire amount being payable along with the application. The issue was fully subscribed. The company achieved the target of the buyback. Later, the company issued one fully paid up equity share of rupees 10 by way of bonus shares for every 4 equity shares held by the equity shareholder. उसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट है बेटा वो क्या बोल रहे हैं? बोनस देने की बात चल रही है. तो ठीक है, बोनस का भी हम देखेंगे, वो आगे की बात है. अब कितने शेयर इश्यू के बेटा? 2 lakh 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each at par. The entire amount being payable along with the application. Boys and girls, एक मुद्दा जो आपको, एक कंसेप्ट जो यहां पर आपको क्लियरली समझना है वो क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, इन माई बैलेंस शीट इफ आई एम हैविंग एन इन्वेस्टमेंट, और फॉर दैट मैटर मैं आपको बात कर रहा हूं मेरी खुद की पर्सनल बैलेंस शीट के बारे में. सोचो, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट है तो बेटा वो मैंने कैसे बनाए होंगे? मेरे प्रॉफिट से.
और कैसे बनता है कोई भी इन्वेस्टमेंट? आप बोलते हो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, कैसे होगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट? बाय योर प्रॉफिट्स. You can have anything in investment, and how do you fund it? You fund it generally by your reserves and surplus. तो जब ऐसा बोला जाए कि हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा, हमने लैंड बेची, हमने बिल्डिंग बेची, हमने कोई भी एसेट बेची, you should understand that the redemption has happened out of free reserve. बेटा ध्यान से क्लियर समझना. कंपनी लॉ, अभी तुम सीए कर रहे हो, कंपनी लॉ क्या कहता है? इफ यू वांट टू इश्यू शेयर्स, यू हैव टू डू एन नंबर ऑफ कंप्लायंसेस. बराबर है कि नहीं? अगर एग्जामिनर आपकी प्रॉब्लम में क्लियरली नहीं लिख दे कि शेयर्स आर इश्यूड, यू शुड ऑलवेज अज्यूम दैट द शेयर्स आर नॉट इश्यूड. रिडम्पशन इज डन आउट ऑफ फ्री रिजर्व. क्योंकि आपने कंपनी लॉ खुद ने पढ़ा है. शेयर इश्यू करने के लिए यू हैव टू डू एन नंबर ऑफ कंप्लायंसेस. प्रॉब्लम में पूछते वक्त भी ऐसे ही पूछेंगे. अगर कुछ नहीं बोला है और आपको बोला रिडम्पशन करो, तो कैसे करोगे आप रिडम्पशन? आउट ऑफ फ्री रिजर्व ओनली. यू शुड नेवर अज्यूम दैट यू हैव इशूड शेयर्स फॉर दैट. क्योंकि शेयर अगर इशू किए होंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स बने होंगे, मिनट्स में उन्होंने क्लियरली बोला इतने शेयर इशू कर रहे हैं, तो आप क्यों दिमाग लगाओगे? डायरेक्टली पता चल जाएगा इतने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो मेरा बच्चा समझ गया. अब मैं आपको लिए चलता हूं इस प्रॉब्लम के पास. इसका चार्ट बनाते हैं. बेटा 25% बाय कर रहे हैं हम, तो फेस वैल्यू कितनी होगी? 2400 डिवाइड बाय 10 इंटू 25%. इज दैट ओके? या मैं डायरेक्टली से 2400 इंटू 25% ले लूं तो क्या दिक्कत है? फेस वैल्यू डायरेक्टली. तो कितना आ रहा है बेटा? 600 आ रहा है. नाउ माय डियर फ्रेंड, रिडम्पशन वैल्यू कितना है? I am paying them 50% more. Friends, I am paying them 50% more. How do you understand it? 10 रुपए की चीज के लिए मैं कितने रुपए दे रहा हूं? 15. So I am paying how much rupees more? 5. 5 on what? 10. So can I not say 2400, or directly can I not say 600 divide by 10 into 15? अब तो ठीक है. 600 डिवाइड बाय 10 मतलब मुझे नंबर्स मिल गए. मल्टीप्लाइड बाय 15 किया तो मुझे क्या मिल गया? जो रिडम्पशन वैल्यू है वो. चलो बताओ मुझे कितना आएगा? 900. Is that okay? Now my dear friend, I divide it into two parts. One is what? Premium on buyback. And what is that? Face value. अब बेटा प्रीमियम ऑन बायबैक कितना देना है आपको? It is 300. बेटा आपके पास एसपी है क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या? एसपी 350 है, तो 300 इधर चला गया, 0. फेस वैल्यू कितना है? 600. 600 के दो पार्ट. एक क्या है? फ्रेश इश्यू, और क्या? फ्री रिजर्व. बेटा फ्रेश इश्यू है क्या? है. देखो कितने का है? हाउ मेनी शेयर्स दे हैव इशूड? बोलो कितना है? 2 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच. सो मैं क्या बोल सकता हूं क्या? 2 लाख को, अच्छा सारे फिगर्स किस में दिए हुए थे हमको? लैक्स में ना. सो 200 लाख इंटू कितना है? बेटा 2 लाख इंटू 100 करो जरा. 2 लाख इंटू 100, 2 करोड़. 2 करोड़ डिवाइड बाय 1 लाख कितना आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय हाउ मच? आई विल से 1 लाख. क्योंकि अपने को सारे फिगर्स किस में चाहिए? लाख में ना. ऑल द अर्लियर फिगर्स आर ऑल्सो व्हाट? इन लैक्स. तो बताओ कितना आ रहा है फिगर? 200 आ रहा है क्या? तो बेटा बैलेंसिंग फिगर हम कहां से निकालेंगे? फ्री रिजर्व. कितना आएगा? 400. ये कहां पे जाएगा? सीआरआर. चलो कर लो. ये कैलकुलेटर कहां पे है मेरा? Why did I divide it by 1 lakh? Because I wanted all the figures into lakhs. 200 lakhs.
यू आर डन? चलो बेटा, मेरी एंट्रीज क्या होगी? पहले हमको किसकी एंट्री करनी पड़ेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 150। सर ये 150 कहां से है? बेटा हमने इन्वेस्टमेंट बेचे, जरा चेक करो जाके। 150 लाख, जरा जाकर चेक करो अपने बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितने के? 148। जरा देखे देखो बैलेंस शीट में कितने के इन्वेस्टमेंट है? 148 एंड यू हैव सोल्ड इट फॉर हाउ मच? 150। सो यू हैव गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 2 lakhs. Yes or no? So 2 investment account, 2 profit or loss account, 2 lakhs. Being investment sold at profit. ऊपर हेडिंग में बराबर लिखना, the entries are rupees in lakhs. The entries are rupees in lakhs. All right, friend? नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, एग्रीड, हमने शेयर इशू किया। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डायरेक्टली एंट्री करेंगे बेटा हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है? शेयर्स आर इशूड एट पार, सो हम लिखेंगे बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, being preference shares issued, ठीक है? Now we are expected to do entry number 3. अभी एंट्री नंबर 3 किसकी करेंगे हम? CRR, जनरली CRR की करते हैं हम, ठीक है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जरा चेक करके बताओ मुझे CRR का कितने का करने का है? 400 करना है क्या? चेक करो जनरल रिजर्व में है क्या उतना बैलेंस? 930 है। बैलेंस शीट में चेक करो बेटा, बैलेंस शीट में चेक करो जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है? 930 है। तो हमको कितना चाहिए? सिर्फ 400 टू CRR। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट 400। ठीक है बेटा? नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री, व्हाट शुड बी द फिफ्थ एंट्री? ड्यू की एंट्री करनी है, तो हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक 300 to equity shareholder. ये सब ठीक है?
सिक्योरिटीज प्रीमियम की एंट्री नहीं हुई क्या? ठीक है, अब कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक की एंट्री नहीं हुई क्या? ठीक है, अभी हो जाएगी। ले, एसपी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट। ये एक्चुअली ऊपर हो जाती तो ठीक रहता, अपना हर बार का सीक्वेंस मैच हो जाता, बट ठीक है। हो गया बेटा? सिक्स एंट्री हो गई। अब क्या करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 900 900। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 900 900। ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब जरा प्रॉब्लम को पढ़ो वापस, क्या लिखा है प्रॉब्लम में। रीड द प्रॉब्लम फर्दर। द इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यहां से पढ़ रहा हूं मैं। द इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, द कंपनी अचीव्ड द टारगेट ऑफ द बायबैक। Later, the company issued one fully paid up equity share of 10 by way of bonus share for every 4 equity share held by equity shareholder. अब यहां पर बच्चा दो जगह पे गड़बड़ कर सकता है। So let's see what is the first area of error. बेटा आपकी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना है? I believe it is 2400. कितना बायबैक हो चुका, कैंसल कर चुके? 600. So I subtract 600. बैलेंस कितना बचेगा? 1800. तो अब अगर आपको निकालना है कि कितना देना है आपको बोनस, सो माय डियर फ्रेंड, दे आर सेइंग वन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 4 हेल्ड। सो माय डियर फ्रेंड, कितना बोनस जाएगा? कैन आई नॉट से 1800 डिवाइड बाय 4, कितना जाएगा? 450। सर डायरेक्टली निकाल रहे, ठीक है ना, कहां दिक्कत है? फेस वैल्यू पर ही करने वाले थे। अगर मैं नंबर्स भी निकाल कर करूंगा तो लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 आई इरेडिकेटेड। सो आई जस्ट टेकन द रेशियो, डिवाइड बाय 4 इनटू 1 450। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, ये 450 ग्रुप 1 में हम कहां से अवेलेबल कराते थे? पहले तुमको कल ही मैंने बताया था कि 3 टाइप के रिजर्व अगर सामने रहे आपके, सीआरआर, एसपी और फ्री रिजर्व, तो पहला किसका नंबर लगाओगे? सीआरआर, क्योंकि सीआरआर का पर्पस ही सिर्फ एक है, क्या? बोनस देना। सेकंड कौन है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसका नंबर कब लगाओगे? सेकंड। एंड व्हाट इज द थर्ड वन? फ्री रिजर्व। एग्रीड? सो लवली बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर नाउ एक्सपेक्टेड टू चेक सीआरआर अकाउंट डेबिट। प्लीज ध्यान से देखना कितना है सीआरआर में। अभी आपने ऊपर एंट्री की थी, कितने की एंट्री की थी? 400। यस और नो? तो बेटा मैंने यूज कर दिया सीआरआर, कितना यूज किया? 400। सीआरआर आई हैव यूज 400। बेटा फिर सेकंड नंबर किसका लगाते हैं हम? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपकी बैलेंस शीट में कितना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम आपकी बैलेंस शीट में कितना है? 350। उसमें से कितना यूज हुआ है? 300। तो बैलेंस कितना है? 50। तो मैंने लिखा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 50। हो गई बल्ले बल्ले। तुमको जरूरत ही इतनी की थी 450 की। फ्री रिजर्व को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, ना जनरल रिजर्व को हाथ लगाओगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हाथ लगाओगे, और आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा? टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। एंड माय डियर फ्रेंड, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इज दैट ओके? इधर मैं वर्किंग लिख देता हूं। बोनस कैसे निकाला हमने? सो 1800 आफ्टर बायबैक डिवाइड बाय 4 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 450। डू ऑल एग्री? ये इतना बोनस देना है, तो हमारी एंट्री आएगी सीआरआर अकाउंट डेबिट, एसपी अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट एंड बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 450 450 क्या हो बेटा?
हाँ, टू बोनस शेयर्स अकाउंट इज ऑल्सो डुएबल। फिर तुम क्या बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करोगे ना, ठीक है। ये अकाउंट नहीं तो भी कैंसिल होने वाला बेटा। तो अगर आपने ग्रुप 1 में ऐसा सीखा होगा कि टू बोनस शेयर्स, इट्स ऑल्सो फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। वो तो इंटरमीडिएट अकाउंट कैंसिल होगा ना नहीं तो भी। गुड। Done, done, done. Shall we move on? So with this entry is done. Now boys and girls, please check question number 6 और मुझे बताइए आप वो होमवर्क ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। पूरा का पूरा सेम टू सेम रसगुल्ला है, सिर्फ थोड़े बहुत फिगर्स इधर उधर चेंज कर दिए और बाकी और कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है। फिगर मेरे हिसाब से आधे कर दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 आप चेक करें और मुझे बताएं होमवर्क कर पाएंगे क्या आप। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ बेटा, क्या हुआ? हाँ, उसकी बैलेंस शीट कहां बोली? इसके बी के तो बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बना लेना आफ्टर बोनस इशू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप यू विल बी एबल टू डू विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6। सो कैन आई गिव क्वेश्चन नंबर 6 एज एन होमवर्क? सो क्वेश्चन नंबर 6 इज एन होमवर्क। Now all my dear friends, you are all invited to the new world of buyback. इतनी देर तक हम जो बातें कर रहे थे वो अब सब थोड़ी देर के बाद में तुम भूलने लगोगे और बायबैक हम और एक टेक्निकल क्वेश्चन के पास जाएंगे जो अगर आपको पूछा गया तो कम से कम 10 मार्क के लिए पूछा जाएगा, एटलीस्ट फॉर 10 मार्क्स। सो वी आर गोइंग टू चेक दैट काइंड ऑफ एन क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, when you go for a buyback as per Companies Act 2013, you have to satisfy at least 3 conditions. As per Companies Act 2013, you have to satisfy at least how many conditions? 3 conditions. The condition number 1 is, and all these conditions should be satisfied cumulative. Cumulative का मतलब समझ में आ रहा है? 1, 2 and 3 तीनों ही चीजें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। यू हैव टू सेटिस्फाई ऑल द 3 कंडीशंस टुगेदर। द कंडीशन 1 इज you should do not more than total buyback should not be more than 25% of face value
25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैंने पीछे कहा था ना कि आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे ही रॉन्ग गए हैं, क्योंकि बायबैक का एक टाइम पर कितने से ज्यादा नहीं हो सकता, 25% ऑफ द पेड अप वैल्यू, आई एम सेइंग फेस वैल्यू। डोंट राइट, दे आर देयर इन द टेक्स्ट बुक, विल रीड इट फ्रॉम देयर। 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल के ऊपर जा ही नहीं सकते। सो सिंपल लॉजिक टू अंडरस्टैंड दिस वुड बी, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग 10,000 शेयर्स. How many shares can you buy back? You can only buy back 2,500, not more than that, sir. This is the limitation ceiling set by Companies Act. Rule number 1 is clear. Rule number 2, you want to buy back, go ahead with the buyback, but when you are buying it, you cannot shell out. जो पैसा दोगे ना आप, while buying, the money which you are going to shell out, जो पैसा दोगे आप, that cannot be more than 25% of the paid up capital plus free reserves of the company. मतलब आपकी बैलेंस शीट में मान लो, there you are having 10,000 of shares या 1 lakh of shares, share capital. You are having reserves and surplus 2,50,000. So what is the total amount? 3,50,000. ये जो दिख रहा है कि आपको, इसका टोटल ले रहा हूं। तुम अभी एसेट साइड समझोगे तो एक काम करता हूं, इधर लेता हूं, 3,50,000 पकड़ता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ टोटल दिखा रहा हूं। 3,50,000 का 25% बताओ कितना है? 87,500। मतलब आपके बुक्स में से जो कैश का आउटफ्लो होगा वो 87,500 के ऊपर नहीं हो सकता। सर पहली और दूसरी कंडीशन में बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होता है। पहली कंडीशन में मैंने बोला सर पेड अप वैल्यू, दैट इज ओनली फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। There I am deciding the quantity test, how much quantity I can buy. In second scenario I am deciding how much money will go out of my company. Agreed? तो उसमें हमको क्या लेना पड़ता है? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। डोंट यू वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। आगे मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा आपको, जस्ट डोंट वरी। What is condition number 3? The condition number 3 is so very beautiful. It says after such buyback, debt equity ratio should not be more than या greater than 2:1। मतलब आपका बायबैक हो जाने के बाद में आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 के नीचे नहीं जा सकता। मतलब 2:1 मैक्सिमम। मतलब क्या? इक्विटी है तुम्हारी 0.5 और डेट है तुम्हारा 2, नहीं चलेगा। डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन, आपका लोन 2 रुपए रहा तो इक्विटी बायबैक के बाद में कम से कम 1 होने ही चाहिए। इक्विटी का मतलब यहां पे शेयर कैपिटल से बात नहीं चल रही है, मैं बात कर रहा हूं इक्विटी का मतलब है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो 3 कंडीशन पहले हम थोड़ी सी देर के लिए रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग द थ्योरी आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन इज अ नंबर टेस्ट। नंबर टेस्ट क्या? जो पेड अप वैल्यू, सिर्फ इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू, या जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास हो गए 50,000, तो बेटा मैं उसका सिर्फ 25% ही बायबैक कर सकता हूं। कितना? 12,500। तो पहले नंबर टेस्ट कहते हैं उसको। कौन से टेस्ट कहते हैं? नंबर टेस्ट। टेस्ट नंबर 2 में हम ये बोलते हैं कि कितना पैसा धंधे में से बाहर जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्सेस टेस्ट। और आप कितना परसेंटेज ले सकते हो? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का कितना परसेंट? 25%। एंड व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? दैट द डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2:1। मतलब डेट 2 और इक्विटी 1, ये इक्विटी 1 से कम हो गई तो नहीं चलेगा। इक्विटी शुड बी 1 इन कंपैरिजन टू डेट 2 अनलेस अ हायर रेशियो इज अलाउड। बट आप चिंता नहीं करो, आपके लिए एग्जाम में 2:1 ही रेशियो रहेंगे। ये 3 कंडीशन हुई। अब हम क्या करेंगे? वी विल रीड डाउन दिस कंडीशन। क्या आप आ गए? इधर नहीं है। मैं सिर्फ कंडीशन पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक का यूज कर रहा हूं। ये सारी कंडीशन आपके इसमें भी रिप्रोड्यूस की गई है, सो डोंट यू वरी।
देखो, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज दिख रहा है क्या? The Companies Act 2013 under section 68 subsection 1 permits companies to buy back their own shares and other specified securities out of its free reserves or securities premium account or the proceeds of the issue of any shares or other specified securities, as we just spoke a little while ago. जैसे हमने बात की थी कि या तो फ्रेश इश्यू से हो सकता है या कहां से हो सकता है, फ्री रिजर्व. आगे बढ़ते हैं. The other important provision, जो important है मैं वो पढ़ रहा हूं. The other important provision for buyback are section 68 subsection 2 further states that no company shall purchase its own shares or other specified securities unless such buyback is authorized by its articles. A special resolution has been passed in general meeting of the company authorizing the buyback. तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन की कंडीशन है, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, हम वो चीज नहीं पढ़ रहे, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है. द बायबैक इज इक्वल और लेस देन 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी. क्या बात हुई बेटा? द बायबैक इज इक्वल टू व्हाट? लेस देन 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी. दिस इज द रिसोर्सेस टेस्ट. The ratio of debt owed by the company, both secured and unsecured, after such buyback is not more than twice the total of its paid up capital and its free reserves. Paid up capital and free reserves का debt equity ratio कितना होना चाहिए? 2:1. मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब a higher ratio of the debt than that specified under this clause for class or class of companies. मगर हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2:1 ही याद रखना है. गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी तो 2:1 से ज्यादा हो सकता है. ऑल द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर बायबैक आर फुल्ली पेड अप. हमारी बात हुई थी ये भी कि पार्टली पेड अप था, तो हमने पहले उसको क्या किया? फुल्ली पेड अप, फिर हम बायबैक के लिए गए. The buyback of the shares or other specified securities listed on any recognized stock exchange is in accordance with the regulation made by the Securities Exchange Board of India in this behalf. Okay, so that's all fine, that's all okay. Now my dear friend, you all requested to understand what is the meaning of free reserve. हाँ, ये सभी लोग लिख कर लेंगे. फ्री रिजर्व्स मींस सच रिजर्व्स. मैंने कहा था ना इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट है, इसलिए लिख कर लीजिए. ये यहां पर मैं ये पढ़ रहा हूं, पॉइंट नंबर बी. फ्री रिजर्व मींस सच रिजर्व, मींस सच रिजर्व्स which as per latest audited balance sheet of the company, which as per the latest audited balance sheet of the company are available for distribution of dividend, which as per the latest available balance sheet are available for distribution of dividend. मतलब जो डिविडेंड पेमेंट करने के लिए अवेलेबल है वो फ्री रिजर्व है. ये तो आप सब बच्चे जानते हो. प्रोवाइडेड दैट, इसके आगे मैं ये बता रहा हूं कि ऐसी कुछ चीजें और है जो फ्री रिजर्व में हम गिनेंगे इस सेक्शन के लिए. यस और नो? लेट्स सी. एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स और रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, वेदर शोन एज रिजर्व और अदरवाइज, और any change in carrying amount of asset or liability recognized in equity including surplus in P&L account on measurement of asset or liability at fair value shall not be treated as free reserve. In other words, revaluation reserve. Revaluation reserve, because anything because of increase in the asset or decrease in the value of liability, you credit all to the revaluation reserve.
विच इज इन द नेचर ऑफ अनरियलाइज्ड गेन। मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग 10 लाख की है, मैंने उसको रिवैल्यू कर दिया 18 lakhs पर, आई हैव गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 8 lakhs। नाउ द एक्स्ट्रा 8 lakh इज अनरियलाइज्ड गेन, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व। तो ये देखो यहां पर क्या लिखा है, any amount representing unrealized gain, notional gain or revaluation of other assets whether shown as reserve or otherwise। in other words लिख लीजिए, free reserve does not include, मैं जैसे बता रहा हूं वो लिख लीजिए, free reserve does not include revaluation reserve। free reserve does not include क्या, revaluation reserve। अब बेटा ऊपर एक नोट लिखिए और यहां पर ये देखिए, मतलब थोड़ा सा स्कैटर्ड है पॉइंट, यहां पर देखिए, कहां गया वो पॉइंट, कहां गया, हाँ ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन आधा लग रहा है क्या, चलिए लिखिए, फ्री रिजर्व विल इंक्लूड free reserve includes securities premium account। free reserve includes securities premium account only for the purpose of buyback, only for the purpose of buyback। are you ready beta? Now you all are requested to pen down this question. Yes, we'll have to write down this question, because as I said, there is some change in the questions, that is the reason we'll have to pen down this question। लिखिए, क्या गंदा नाम है यार, पैरेट लिमिटेड लिख दो। पैरेट लिमिटेड, a non-listed company, has the following capital structure as on 31st March 2011। Parrot Limited Company has the following structure as on 31st March 2011। ठीक है, लिखिए पर्टिकुलर्स रुपीज इन करोर्स, पर्टिकुलर्स रुपीज इन करोर्स, ठीक है। Equity share capital, shares of rupees 10 each, fully paid up 330। shares of rupees 10 each, fully paid up 330। Then write down the point number 2, reserves and surplus। reserves and surplus, अंडरलाइन करो बेटा reserves and surplus को, reserves and surplus अंडरलाइन किया, and then write down general reserve 240, general reserve 240, general reserve 240, securities premium account 90, securities premium account 90, profit and loss account 90, profit and loss account 90। ठीक है, what is the next item? Infrastructure development reserve 180, infrastructure development reserve 180,
180, आउटर कॉलम में कितना आएगा 600. थर्ड, लोन फंड्स 1800, लोन फंड्स 1800, 1800. शुड दिस बी फाइन फ्रेंड्स? नीचे आ जाओ. Shareholders of Parrot Limited, on recommendation of their board of directors, on recommendation of their board of directors, have approved उधर देना, have approved on 12/9/2011, on 12/9/2011, a proposal to buy back maximum number of equity shares, as per Companies Act 2013. वहां पे नहीं लिखा, मैं बोल रहा हूं as per Companies Act 2013. जितना भी मैक्सिमम बाय कर सकते हो उतना बताइए एज पर कंपनीज एक्ट 2013. द प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर, is rupees 25 per share, and in order to induce the existing shareholders buyback price is offered 20% over the market value. ठीक है, 20% above the market value. चलो, you are informed that infrastructure reserve is created to satisfy Income Tax Act. All right, ठीक है बेटा. आगे, you are required to compute, next line, you are required to compute maximum number of shares in the following three scenarios. मैं बोल रहा हूं in the following three scenarios. क्यों टेंशन ले रहा है? When loan fund is 1800, scenario 1, when loan fund is 1800, write down scenario number 2. When loan fund is 1200 crore, and when loan is 1500 crore, when the loan fund is 1500 crore, 1500 crore. Assuming buyback is completed, show journal entries. लिख लो, very important question, very likely in exam.
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी लाइकली इन एग्जाम. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द गेम. थोड़ा सा आपको ध्यान इधर रखना पड़ेगा एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, write down the first thing, the working note, statement determining maximum number of shares to be bought back as per Companies Act 2013. ऑल राइट, और उसमें आप ऐसे बनाओ पर्टिकुलर्स, और यहां पर ऐसा व्हेन लोन फंड इज, पहला वाला कितना है, ₹1800 crore. Then you have to write down 1200 crore, and then you have to write down 1500 crore. ठीक है, maximum buyback which you can do. Leave around 10 lines and frame journal entries. Format number 2, journal entries. Journal entries. Journal entries के लिए leave around 16 lines, 16. ठीक है, और आगे बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1, और ये हम धीरे धीरे सॉल्व करना है, ऐसे शुरू करेंगे. तो आप पहले एक बार फॉर्मेट बनाकर रेडी हो जाओ. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वर्किंग नोट लिखिए, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट. शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट. शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट. उसमें से पहले लिखिए बेटा, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विच आर आउटस्टैंडिंग इन योर बैलेंस शीट? 330? यस और नो? सो कैन आई नॉट राइट डाउन टोटल number of shares outstanding in the books? So I'll say 330 divided by 10. 330 divided by 10 ही है ना, rupees in crore, and 10 rupees is the face value. So what are the total outstanding? 33. Agreed? And how much you can buy? मैंने बोला था सिर्फ 25% buy कर सकते हो. So can I not write down 25% of the shares outstanding? That is nothing but 33 into 25%. बोल बेटा कितना आ रहा है? So 8.25, that is nothing but 8,25,000 shares. 8,25,000 आएगा crores है. crores में आएगा बेटा, क्योंकि अपने सारा फिगर्स crores में. So my answer would be 8,25,00,000 shares. नंबर्स इन क्रोर्स. पहली टेस्ट समझ में आई? यस और नो? सो बेटा अब ऊपर आ जाओ. ऊपर की एक वर्किंग नोट अपनी इधर बनाई थी, उधर नोट नंबर 1 लिखिए, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट. वर्किंग नोट नंबर 1, एंड यू विल से इट इज हाउ मच? 8.25 crores, 8.25 crores and 8.25 crores. क्योंकि लोन कितना है उससे आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाय कर सकते हो चेंज नहीं होगा. लोन के वजह से जो चेंज हो सकता है वो सिर्फ चेंज होगा डेट इक्विटी रेशियो में. पॉइंट क्लियर सर? सो 8.25 इज व्हाट यू कैन बाय.
Point clear? Now let's do working note number 2. Working note number 2. Working note number 2 में आप लिखोगे heading resources test. Resources test. ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं. सब लोग पहले देखेंगे. आपका बनेगा इधर एक particulars और इधर रुपीज. मैंने क्या कहा था, रिसोर्सेस टेस्ट में आपके कंपनी में से जो पैसा बाहर जा सकता है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 25% ऑफ योर पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व. एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? सो नाउ लेट्स टेक अप व्हाट आर आर पेड अप कैपिटल. तो मेरा पेड अप कैपिटल कितना है बेटा? पेड अप कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ कितना है? सो आई राइट डाउन 330. फिर बेटा मेरा नेक्स्ट कौन से और रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा मेरा जनरल रिजर्व है क्या? बोल बेटा जनरल रिजर्व कितना है मेरा? 240 प्लस बेटा मेरा और क्या है? एसपीए कितना है? 90. इज दैट ओके? और फिर मेरा क्या है? पी एंड एल अकाउंट है कितना है? 90. और बेटा मेरा ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व कितना है? 180. बेटा जरा एक बार टोटल लेकर बताओ मुझे इन चारों की कितना है? यू सेइंग 600. इज दैट ओके? नहीं, मुझे सिर्फ 240 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 180 कितना आ रहा है? 600. बॉयज एंड गर्ल्स 600 में से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज व्हाट यू हैव क्रिएटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स. सो टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, 600 minus 180 is how much? 420. Please read that line. What is that line saying? You are also informed that infrastructure development reserve is created to satisfy income tax act requirement. इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायरमेंट, अगर थोड़ा बहुत इनकम टैक्स एक्ट आता होगा आपको, तो ये रिजर्व कभी भी डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल नहीं होता. मैं थोड़ा सा इनकम टैक्स में घुसकर आपको थोड़ी सी उसकी बातें बताऊंगा. इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस कैसे बनते हैं मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक समझाता हूं. इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन बनते हैं भारत के डेवलपमेंट के लिए. भारत के डेवलपमेंट के लिए कैसे बनते हैं? उन्होंने एक रिजर्व बनाया था, टी कॉफी प्लांटेशन रिजर्व. जब भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत, इंडिया वॉज वेरी रिच इन प्रोड्यूसिंग टी, कॉफी, रबर एंड ऑल एंड स्पाइसेस, तो भारत को एक्सपोर्ट करना था. तो उन्होंने बोला कि आप इस बिजनेस को बढ़ाओ, टी, कॉफी, रबर प्लांटेशन के बिजनेस को बढ़ाओ. तो उन्होंने कहा कि आप आपके प्रॉफिट का थोड़ा सा पोर्शन एक रिजर्व में ब्लॉक करो और उस रिजर्व को यूज करो टी, कॉफी, रबर प्लांटेशन को डेवलप करने के लिए. फिर उसमें कुछ इनकम टैक्स की कंडीशन दी हुई है. आप क्या खरीद सकते हो? उसे प्लांट एंड मशीनरी खरीद सकते हो. आप क्या खरीद सकते हो? उसके लिए इरिगेशन करा सकते हो. और भी अलग अलग चीजें उसके लिए बताई गई कि आप उस बिजनेस को डेवलप करने के लिए खर्चा करो. ये कंडीशन अटैच्ड होती है. क्यों? क्योंकि जैसे ही वो बिजनेस डेवलप होगा वैसे ही टी, कॉफी, रबर प्लांटेशन बढ़ेगी, वैसे ही आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा. एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगी. कभी भी आप इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा रिजर्व नहीं देखोगे कि जो बोलेंगे कि रिजर्व बनाओ और इससे डिविडेंड दो. ओनर के फायदे के लिए इनकम टैक्स एक्ट कभी नहीं करेगा. ओनर के फायदे के लिए कभी नहीं करेगा. किसके फायदे के लिए करेंगे? वो सीधा बोलेंगे भाई तुमने इन्वेस्ट करना है धंधे में, वो धंधा अगर बढ़ेगा तो उससे जिससे भारत का फायदा होगा वो चीज. अब जैसे और एक क्लॉज आपको मैं बताता हूं इनकम टैक्स एक्ट का, थोड़ा सा फील ले लेना तो तब के आपको समझेगा कि क्यों ये मैं फ्री रिजर्व है बोलकर नहीं बोल रहा हूं. जैसे एक दूसरा देखना, आपने ये वाला सुना होगा कोल्ड स्टोरेज सिस्टम भारतीय सरकार बहुत प्रमोट कर रही है, क्योंकि वी इंडियन पीपल आर एक्चुअली सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब. सच ए ह्यूज पॉपुलेशन. चेन्नई में अभी जैसा हुआ, कल को अगर किसी भी सिटी में कुछ हुआ और फूड शॉर्टेज हुआ, जैसे ये करंट ईयर सच ए ह्यूज फूड शॉर्टेज, बेटा वी नीड टू हैव द अबंडेंट फूड रिसोर्सेस विद अस. इसीलिए उसको फ्रीज करके रखने के लिए बोला जा रहा है. इसलिए कोल्ड स्टोरेज सिस्टम को प्रमोट किया गया है, वेयर हाउसिंग सिस्टम को प्रमोट किया गया. भारत सरकार जब कभी इनकम टैक्स के लिए बेनिफिट देगी वाया रिजर्व, दे आर ओनली गिवन
for the development of that business, never for withdrawing the money. So बेटा अब तुम सोचकर बताओ, हमको लेना है यहां पर फ्री रिजर्व, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व ये फ्री रिजर्व हो सकता है? द आंसर इज नो. सो आई स्ट्राइक इट डाउन अगेन. समझ में आया क्यों फ्री रिजर्व नहीं है? मैंने उसके लॉजिक्स बताया, अगर आपको थोड़ा बहुत इनकम टैक्स एक्ट आता है तो. अब जरा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों. सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में मैंने आपको क्या लिख के दिया? सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व्स, यस और नो? ओनली फॉर द सेक्शन ऑफ बायबैक. तो मुझे बताओ कितना आता है टोटल आपका फ्री रिजर्व, और ये मिलाकर मैंने कैंसिल किया. क्यों कैंसिल किया समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ टोटल कितनी आ रही है. सो कैन आई से पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व अकॉर्डिंग टू यू इज 750. हाँ बोलो. हाँ तो मैं वही बोल रहा हूं ना, फ्री रिजर्व नहीं, इसलिए कैंसिल कर दिया मैंने. हाँ अगर ये पूछ रहा है कि सर इनकम टैक्स एक्ट के बारे में अगर कुछ बोला नहीं होता तो भी बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व नाम पढ़ने के बाद में समझ में आता है कि इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व. बट हम कैसे लॉजिक से जा रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट का नाम सुना गया है तो आपको समझाना तो पड़ेगा ना भाई, और उधर क्लियरली बोला है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स, तो शायद आपको लगे कि भाई वो फ्री रिजर्व हो, इसलिए मैंने पूरी बात बताई आपको. 750 तक आ गया सर जी. अब मुझे बताएं इसमें से कितना पैसा बाहर जा सकता है? हाँ जी 25%. सो कैन आई नॉट राइट डाउन 25% ऑफ, इसको मैं ए लिख देता हूं, 25% ऑफ ए अबव. तो कितना आएगा बेटा 750 का 25%? बोलो जल्दी से. 187.5. 750 इंटू 25%. मतलब आप बोल रहे हो इतना पैसा हम धंधे में से बाहर जाने के लिए तैयार है फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक. नाउ माय डियर फ्रेंड, कितना है बायबैक प्राइस? बायबैक प्राइस कितना है? बायबैक प्राइस, कैन आई नॉट से दैट द बायबैक प्राइस इज 25 प्लस 20%? कितना आ रहा है? 25 30 रुपीज 30. एग्रीड और नॉट? तो बेटा कितने नंबर्स बाय कर पाएंगे हम? नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, that can be bought back. So can I not say 187.5 divide by rupees 30 बराबर है ना? कितने बाय कर सकता हूं? तो 187.5 ये मैक्सिमम करोड़ रुपीस मेरे पास है, डिवाइड बाय एक शेयर की प्राइस कितनी है 30, तो कितने बाय बैक कर सकता हूं? 6.25 करोड़ शेयर्स. चलो आप ये वर्किंग नोट पूरी कंप्लीट कीजिए. मजा आया? Point clear, friends? Now let's come down and write down over here shares outstanding test तो लिख दिया. अब next लिखते हैं कंडीशन नंबर 2 हमारी वो आएगी रिसोर्सेस टेस्ट.
वर्किंग नोट नंबर 2 कितना आ रहा है बेटा उसके हिसाब से? हमारा 6.25 करोड़, 6.25 करोड़ एंड 6.25 करोड़। मजा आया? Mocambo. Let's move on to the third working note. And the third working note is what? Debt equity ratio. So लिखिए अभी debt equity ratio working note number 3. Debt equity ratio. कितना मेंटेन करना है? कम से कम 2:1 क्राइटेरिया। Okay, so let's make a format for this. Particulars: when loan fund is rupees 1800 crores, rupees 1200 crores and rupees 1500 crores. ठीक है? So let's write down first one. Loan funds. ये point number 1. Loan funds कितने दिए हो बेटा? I'll write down 1800 crores, 1200 crores and 1500 crores. All the figures are in crores. ठीक है बेटा? डेट 1800 होगा तो इक्विटी कितनी होनी चाहिए? डेट 1800 होना चाहिए तो इक्विटी कितनी होनी चाहिए? हाफ, मैक्सिमम हाफ हो सकती है, उसके नीचे नहीं जा सकती। सो हम लिखेंगे इक्विटी टू बी मेंटेन्ड, इक्विटी टू बी मेंटेन्ड। तो 1800 का कितना होना चाहिए? 900। इसका कितना होना चाहिए? 600 और इसका कितना होना चाहिए? 750। ठीक है? अब जरा मजा आता है कि जरा चेक करो प्रेजेंट इक्विटी कितनी है। प्रेजेंट इक्विटी बेटा, इक्विटी का मतलब है, प्रेजेंट इक्विटी का मतलब है, इक्विटी का मतलब क्या है? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। सो कैन आई नॉट राइट डाउन पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व? अभी थोड़ी देर पहले आपने ऊपर कैलकुलेट की, 750 थी, 750 थी, 750 थी। यस और नो? बेटा अब जरा देखकर बताओ मुझे, इक्विटी इतनी मेंटेन होनी चाहिए। इक्विटी 900 तक ही डाइल्यूट कर सकते हम, क्योंकि 1800 का आधा तो चाहिए ही चाहिए। अरे भाई हमारी अभी की इक्विटी के पता नहीं वही 750 है। कैन वी इन केस नंबर 1 गो फॉर बाय बैक? बिकॉज मिनिमम कितना चाहिए? 900। मेरे पास कितना है? 750। आई कैन नॉट गो फॉर एनी बाय बैक। डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? मेरी प्रेजेंट इक्विटी कितनी है? 750। उसमें ही बायबैक अलाउड नहीं होगा। क्लियर? सो आई विल राइट डाउन 4th पॉइंट, परमिसिबल डाइल्यूशन। परमिसिबल डाइल्यूशन या परमिसिबल बायबैक नॉट एप्लीकेबल। नोट नंबर 1 लिखेंगे। बेटा रीड सिनारियो नंबर 3। इस सिनारियो में चेक करो, सिनारियो नंबर 3। 750 इक्विटी डाइल्यूट होकर आ सकती है, मतलब बायबैक के बाद में कितनी होनी चाहिए? कम से कम 750। अभी के तारीख में कितनी है? 750।
तो हाउ मच बायबैक इज अलाउड? नॉट अलाउड, नॉट एप्लीकेबल, नॉट अलाउड। व्हाई? क्योंकि 750 के नीचे जा ही नहीं सकते, 750 ही है। यस और नो? क्योंकि तुम्हारा कम होकर कितना हो सकता है? 750। डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? देखो कितना था, 1500, 1500 का आधा 750 होना ही चाहिए इक्विटी। आज की तारीख में इक्विटी कितना है? 750। बायबैक कर लोगे तो और इक्विटी कम हो जाएगी ना। बायबैक करोगे मतलब आप शेयर्स को बायबैक करोगे तो इक्विटी कम हो जाएगी ना। अलाउड नहीं है। क्लियर हो रहा है? सो इन द थर्ड सिनेरियो ऑल्सो नॉट अलाउड या नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 ही, सॉरी। तो अभी हम एक बार नोट नंबर 1 लिख लेंगे। सो चलो लिखो नोट नंबर 1। अंडर सिचुएशन 1 and 3, under situation 1 and 3, the company is not eligible for buyback. ये थोड़ी सी जगह छोड़ना है इसके नीचे, एक चार पांच लाइन छोड़ देना, ठीक है। अंडर सिचुएशन 1 and 3, the company is not eligible for buyback, is not eligible for buyback. Is not eligible for buyback as why? Is not eligible for buyback, why? As the present equity, as the present equity with the debt does not satisfy, the present equity with debt does not satisfy, as the present equity with the debt does not satisfy, क्या? The ratio of debt equity, the present equity with the debt does not satisfy the debt equity ratio of 2:1, debt equity ratio of 2:1. आपको बात समझ में आई? अब जो मैं बताने जा रहा हूं पहले गलत बताऊंगा और फिर क्लियर करूंगा। तो अभी मैं थोड़ी सी देर के लिए समझाने के लिए एक थोड़ा सा इजी पहलू लूंगा, फिर इसका डिफिकल्ट पार्ट लूंगा। सभी के पेन डाउन, और एवरीवन इज गोइंग टू वॉच केस नंबर 2। केस नंबर 2 के लोन फंड्स कितने हैं? 1200। बेटा इक्विटी टू बी मेंटेन्ड कितना? उसका आधा, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो तब उसके इसमें कितना हो जाएगा? 2:1। मतलब लोन फंड 1200 है तो कम से कम इक्विटी कितनी होनी चाहिए? 600। सो बेटा जी मेरा कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 600 इक्विटी चाहिए, मेरी ऑलरेडी इक्विटी कितनी है? 750। तो मतलब मैं 750 से कम कर कहां तक आ सकता हूं? 600। सो बेटा 750 माइनस 600 कितना आता है? 150। 150 डिवाइड बाय बायबैक प्राइस 30, 150 डिवाइड बाय बायबैक प्राइस 30 कितना आएगा? कितना आ रहा है? 150 करोड़ डिवाइड बाय 30 कितना आ रहा है? 5। बट दिस इज नॉट ट्रू। आंसर ऐसे ही निकालने वाला हूं मैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। क्या बोला मैंने? 750 माइनस 600 कितना है? 150। इतना डाइल्यूशन करने का स्कोप है मेरे पास, इतना कम करने का स्कोप है मेरे पास। समझ में आई क्या बात? डिवाइड बाय मैंने कितने से किया? 30। मतलब एक का बायबैक प्राइस कितना है? 30। सो मैंने डिवाइड बाय 30 किया और मैंने बोला कितने शेयर्स बायबैक कर सकता हूं? सो आपने बताया 5 करोड़ शेयर बायबैक कर सकता हूं। हालांकि ये सत्य नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि बेटा आपके अभी का इक्विटी कितना है? 750 है, मगर ये इक्विटी का डेफिनेशन अब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस इक्विटी में से कुछ पोर्शन जैसे ही बायबैक होगा सीआरआर में चला जाएगा। एम आई इश्यूइंग एनी शेयर्स? मैं कोई शेयर्स इश्यू कर रहा हूं क्या? नहीं। 750 कैसे है जरा चेक करो। 750 कैसा है जरा चेक करो। 750 330 प्लस 240 प्लस 90 प्लस 90 750। एग्रीड और नॉट? अब इस अमाउंट में से 750 अमाउंट में से कुछ पोर्शन जैसे ही बायबैक होगा कहां जाएगा? सीआरआर।
क्योंकि मैं एक भी शेयर नया इश्यू नहीं कर रहा हूं। चेक कर लो, कोई शेयर इश्यू करने की बात हुई है क्या? नहीं। तो बेटा कुछ ना कुछ अमाउंट सीआरआर को जाएगी। उन्होंने कहा डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1। 750 में से कुछ अमाउंट सीआरआर में जाएगी अगर बायबैक होगा तो, हां या ना? अगर सीआरआर में गया तो बेटा जी वो फ्री रिजर्व है। आपका रूल बना दैट द डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1, वेयर द इक्विटी का डेफिनेशन इज पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, एंड सीआरआर इज नॉट अ फ्री रिजर्व। तुमको यह बात क्लियर हो गई कि बायबैक कर सकते हो, मगर बायबैक का क्लॉज इतना सिंपल नहीं है कि 750 माइनस दिस, क्योंकि 750 में से कुछ पैसा निकलेगा, कहां जाएगा? सीआरआर। तो वो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व जैसे ही हो जाएगा ना। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व को लाइन क्यों मारी? क्योंकि वो फ्री रिजर्व नहीं है। अब इसमें से भी कुछ रिजर्व बाहर निकलकर सीआरआर बन जाएगा पोस्ट बायबैक। बायबैक करूंगा तो सीआरआर बनेगा, सीआरआर बनेगा तो बेटा फ्री रिजर्व नहीं रहेगा। फ्री रिजर्व नहीं रहेगा तो जरा जाके कंडीशन वापस से पढ़ो। डेट इक्विटी रेशियो की कंडीशन कब है? प्री बायबैक या पोस्ट बायबैक? ये देखो, कहां पे हो कंडीशन? यहां पर इज नॉट मोर देन ट्वाइस। देखो, द रेशियो ऑफ डेट ओन्ड बाय द कंपनी बोथ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड आफ्टर सच बायबैक। बायबैक के बाद में डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1। अब मैं थोड़ी सी देर के लिए तुमको साइकिल समझाऊंगा। बेटा कितना बायबैक करना है मुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक सीआरआर में कितना जा रहा है। समझ में? कितना बायबैक कर पाऊंगा मुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मुझे यह पता नहीं है कि सीआरआर में कितना जाएगा। रूल नंबर 1 क्लियर? रूल नंबर 2, सीआरआर में कितना जाएगा ये मुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक बायबैक के नंबर्स मेरे पास नहीं हो। सो वी आर स्टक अप इन अ लूप। सीआरआर के लिए मुझे नंबर्स ऑफ शेयर्स बॉट बैक चाहिए, हाँ या नहीं? और नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक के लिए मुझे सीआरआर का फिगर चाहिए। बोथ आर इंटरलिंक्ड। तो इस केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। इज दैट ओके? So let's write down the working note number. इसके नीचे बेटा, अब इसके नीचे 3-4 लाइन आपने छोड़ी हुई है, राइट? अब इसके नीचे हम लिखेंगे, राइट डाउन, let the amount transferred to CRR is equal to X. ठीक है? First, let the amount and let the maximum amount permitted for buyback be Y. Maximum amount permitted for buyback be Y. Did you get my point? मैंने दो चीजें पकड़ी। CRR is equal to मैंने क्या पकड़ा? Let the amount transferred to CRR is equal to X and let the maximum permitted amount for buyback be Y. Is that okay? अब जरा मुझे जाके बताओ कि आपकी प्रेजेंट इक्विटी कितनी है? 750 है क्या? राइट? 750 है। प्रेजेंट इक्विटी 750 है बिफोर बायबैक। आफ्टर बायबैक मैं कितना रिड्यूस होकर आ सकता हूं? 1200 का आधा 600। हाँ या नहीं? 1200 का आधा 600। सो इक्विटी अभी कितनी है मेरी? 750, जो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व है। मैं मैक्सिमम कहां तक जा सकता हूं? 600। तो मैंने बोला था 150 तक बायबैक कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं? तो देखो बेटा, मैं बोलूंगा फर्स्ट इक्वेशन 750, जरा एक बार देखो पहले। 750 माइनस एक्स, माइनस एक्स क्यों किया? माइनस एक्स किया मतलब सीआरआर की अमाउंट माइनस कर दी मैंने। माइनस कहां तक इक्विटी जा सकती है?
माइनस कहां तक जा सकती है? 600. इट विल गिव मी द वाई फिगर कि मैं कितना बायबैक कर सकता हूं, कितना पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व को मैं डाइल्यूट कर सकता हूं. पहले मैं क्या कर रहा था, डायरेक्टली 750 माइनस 600 कर रहा था, बट ऐसा नहीं है. 750 में से कुछ अमाउंट कहां पे जाएगी? सीआरआर में. तो मैंने 750 माइनस एक्स कर दिया, क्योंकि एक्स क्या है? सीआरआर. तो 750 माइनस सीआरआर, ऐसे पढ़ो, माइनस 600. 600 क्या है? जो मिनिमम मेंटेन करना ही है, तो मैं डाइल्यूट कितना कर सकता हूं, वो अमाउंट में बायबैक कर सकता हूं. दैट इज व्हाट आई सेड, यू बायबैक. एग्रीड? ये क्वेश्चन नंबर 1 हुई. लिख कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा, यहां तक लिख कर ले लीजिए. हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट नंबर 1? अब पॉइंट नंबर 1 के बाद में पॉइंट नंबर 2 थोड़ा सा डेंजरस है. ध्यान से सुनो. इजी है बट थोड़ा सा दिमाग लगेगा. बेटा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सीआरआर मतलब क्या? सीआरआर हमेशा मैंने फेस वैल्यू का ही ट्रांसफर किया है कि नहीं किया? सीआरआर हमेशा मैंने क्या फेस वैल्यू का ही ट्रांसफर किया है कि नहीं किया? सो आई विल राइट डाउन नंबर ऑफ शेयर्स that can be bought back. Number of shares that can be bought back. Please एक बार चेक करते रहो. Number of shares that can be bought back. I'll say maximum amount, permissible amount available divide by buyback price. और क्या? ये मेरे को नंबर्स देंगे ना, जितना मेरे को परमिसिबल दिया है और उससे डिवाइड बाय बायबैक प्राइस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? द नंबर ऑफ शेयर्स विच आई कैन बाय बैक. ओ, देन आई मूव टू पॉइंट नंबर 3. Can I not present this as y divide by 30? I'll get the number, sir. Maximum permissible amount कितना था? Y था. Divide by 30. I'll get the numbers. Yes or no? मुझे number of shares buyback मिलेगा. Y maximum permissible amount था. Divide by buyback price is 30. Now can I not say CRR is equal to नंबर्स इनटू फेस वैल्यू? मैंने ऐसे ही सीखा है. सीआरआर इज इक्वल टू व्हाट? जितना बायबैक करने वाले हो उतना शेयर का फेस वैल्यू आपको कहां पे डालना पड़ता है? सीआरआर में. नंबर्स कितना था मेरा? सीआरआर इज इक्वल टू, कैन आई से एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाय 30 इंटू फेस वैल्यू इज हाउ मच? 10. सदमे में हो. नंबर्स वाई डिवाइड बाय 30 निकाला था, राइट? नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, यू ट्रांसफर इट टू सीआरआर. याद करो तो मैंने क्या लिखा? सीआरआर एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाय 30 इंटू 10. हैव डन मैम? विद दिस नाउ आई हैव गॉट 2 इक्वेशंस. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब 2 इक्वेशन कौन से हो गई आपके पास? चलो दोनों इक्वेशन लिखो. सॉल्विंग equation 1 and equation 2. What is equation number 1? 750 minus x minus 600. So can I not say x is equal to 150 minus y? फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया मैंने. ये देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 750 माइनस 600 कितना हो जाएगा? 150. और माइनस एक्स को इधर ट्रांसफर कर दिया और वाई को इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या आ जाएगा? वाई. इसको और सिंप्लीफाई करना होगा तो कैसे हो जाएगा? वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 150. कैसे?
x इधर आ जाएगा ना, हाँ सॉरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, सॉरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, सर बराबर है, दैट इज CRR प्लस द मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल प्लस बायबैक इज इक्वल टू 150, बराबर है। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, इसको सिंप्लीफाई करते बेटा, इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर कर, ये 0 0 गया, 3x is equal to y. Am I communicating? So can I write down 3x is equal to y? ये इक्वेशन नंबर 2 है, बराबर है क्या। अब इस इक्वेशन को ऊपर रिप्लेस कर देते, रिप्लेसिंग इक्वेशन 2 in 1, बराबर है। So can I say x plus 3x is equal to 150, that is 4x is equal to 150, so x is equal to 150 divided by 4 and it is equal to how much, 37.5। so तुम्हें CRR का अमाउंट मिल गया क्या, ये यहां तक लिखते आ जाओ, ओके बेटा। सो राइट डाउन नाउ CRR इज इक्वल टू कितना आएगा, नहीं बताओगे, 37.5 और मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक इज इक्वल टू, बायबैक इज इक्वल टू कैन आई से 150 माइनस 37.5, बराबर है ना। ऊपर की इक्वेशन में डाला बाबा, इधर x प्लस वाई इक्वल टू 150 ना, तो x में 37.5 डाल दिया, तो y ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 112.5। चले बेटा, अब इस वर्किंग नोट पे आ जाओ वापस, कहाँ पर थे हम, हाँ यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखो, इधर कितना आ जाएगा 112.5, यह भी निकाला, ये कौन सी है वर्किंग नोट नंबर जो भी होगी, वर्किंग नोट नंबर 3 आई गेस। और बेटा फिफ्थ पॉइंट आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, maximum number of shares to be bought back is equal to 112.5 divided by 30, बोलो कितना आएगा, कितना 3.75 crores। इधर तो कुछ आएंगे नहीं ना, नील नील, डिवाइड बाय 30 क्या बायबैक प्राइस है, ये 3.75 लिया इधर, चलो अब इसको इधर लाकर फिल अप करो। थर्ड वन, डेट इक्विटी टेस्ट, डेट इक्विटी टेस्ट, इधर नील, एक भी बायबैक नहीं कर सकते। दूसरे वाले केस में कितना है 3.75 और इधर कितना आएगा नील, समझ में आया कि नहीं है। अब इधर लिखेंगे मैक्सिमम शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, ठीक है। सो इधर आएगा इन द ब्रैकेट लोअर ऑफ द 3, लोअर ऑफ द 3, तीनों में से जो लोअर होगा वो, पहले वाले का कितना आएगा नील, दूसरे वाले में से कितना आएगा 3.75 और इधर कितना आएगा नील। ठीक है, चलो अभी एंट्रीज कर लेंगे।
ये मिल गया ना अभी 3.75, एक ही की तो एंट्री करनी है। चले शुरू करें, चला जा भाई जर्नल एंट्री पर। तो आ गई अपनी जर्नल एंट्री, यस पहली जर्नल एंट्री। क्या करते बेटा हम पहली जर्नल एंट्री, ये रिवर्स करते, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आई विल राइट डाउन 3.75 आया ना बेटा, इंटू ₹10। कि फेस वैल्यू कितनी है 10 है क्या, फेस वैल्यू कितनी है 10 है, यस कितना आएगा बेटा 375, 37.5 सॉरी। फिर क्या, प्रीमियम ऑन बायबैक, ये कितना आएगा 3.75 करोड़ इंटू ₹20, तो कितना आ जाएगा 37.5 इंटू 2 बताओ 75 टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना आएगा बेटा जी 112.5, लिखो बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन बायबैक। एंट्री नंबर 2 करो, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 112.5 टू बैंक अकाउंट 112.5, ठीक है। बेटा नेक्स्ट एंट्री करते हैं, हमको पैसा लॉक करना पड़ेगा क्या, कहां पे, सीआरआर में। सो बेटा जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया है क्या आपको, यस 240। सो मैं एंट्री कहां पे डाल दूंगा इसको, हाँ बेटा प्रीमियम ऑन बायबैक कितना जा रहा है अपना 75, एसपी में कितना बैलेंस है अपना 90 है, 90 है ना। सो कैन आई राइट डाउन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना 75 टू प्रीमियम ऑन बायबैक, ठीक है। और बेटा लास्ट कौन सा एंट्री है, 4th वन, क्या सीआरआर की एंट्री, क्या करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 37.5 टू सीआरआर अकाउंट 37.5, हाँ 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 क्या बोल रहा है, हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम से कैंसिल किया ना अभी, प्रीमियम ऑन बायबैक को अभी कैंसिल किया ना सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट। क्या क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अच्छा अच्छा ठीक है, गुड मॉर्निंग। अच्छा योर क्वेश्चन इज कैन आई ट्रांसफर एसपी का बैलेंस टू सीआरआर। See, technically you can transfer. If you read the bare text Companies Act 2013, technically you can transfer even SP balance to CRR. अगर bare text पढ़े तो हम, but आपकी मॉड्यूल ने, आपकी इंस्टीट्यूट ने सिक्योरिटीज प्रीमियम को सीआरआर में कभी भी ट्रांसफर नहीं किया, बैलेंस होने के बावजूद भी, इसीलिए वी आर नॉट गोइंग टू डू इट, क्योंकि कुछ केसेस में हमको मार्क्स भी देखने पड़े। bare plain text पढ़ोगे कंपनीज एक्ट की, so it is allowed. You read the bare text, plain text, तो even securities premium balance can be transferred to CRR. बट आपकी इंस्टीट्यूट ने एक भी प्रॉब्लम में ऐसा किया नहीं, जबकि सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल था। सो वी आर गोइंग टू रिफ्रेन इट, इज दैट ओके। सो विद दिस समय आ गया कि आप मुझे प्यार से बाय बोले, एंड देन वी एंजॉय। आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज डू ट्राई एंड सॉल्व मॉड्यूल्स क्वेश्चन इन दिस सिनेरियो विच आर बेस्ड ऑन द सेम, ठीक है। चलो प्यार से बाय बोलो।